Hello students, this is Kamal Kant and you are watching Kamal Sir's English Academy. Today we will read A Tiger in the Zoo, a beautiful poem from your textbook First Flight, class 10th. A Tiger in the Zoo is a very beautiful poem. The poem A Tiger in the Zoo, written by Leslie Norris, explains the agony and helplessness of a caged tiger that lives in a zoo. The poet imagines the life of a free animal. The poet has tried to explain about the condition of animals that are caged by human beings for their own fun. And here the writer is Leslie Norris, who was born in 21st May 1921 and he was died in 6th April 2006. Leslie Norris, he was prize-winning Wallace poet and short story writer. He was a college lecturer, teacher and headmaster. He worked as a lecturer, he worked as a teacher and as a headmaster, and he earned his living. After that, he started full-time writing with residencies at academic institutions in Britain and the United States from 1974. The present poem, A Tiger in the Zoo, the poem contrasts a tiger in the zoo with the tiger in the natural habitats. It moves from zoo to jungle. The story moves from zoo to jungle. Some of the stanzas, they describe the scenario, assumptions of forest, and some in the zoo, and back again to the zoo. In this poem, the main lines are: he stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage. The poem is based on ABCB, the version that is written in ABCB. He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. He should be narrowing around houses at the jungle's edge, bearing his white fangs, his claws terrorizing the village. But he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. Leslie Norris. So let's discuss and try to understand the first stanza. In the first stanza, he stalks in his vivid stripes. Here, the writer wants to say stalks means angry walk. Angry walk, from here to there someone walks, that is called stalks. Vivid stripes, that is the bright color, the stripes on the skin of tiger. The few steps of his cage on pads of velvet quiet. Here pads means the paws of the tiger and velvet quiet means just like soft like velvet. In his quiet race, rage means anger. Have you heard that he is angry quietly? So this is this first stanza. हमें अब ये समझना है कि इस फर्स्ट स्टैंजा में पोएट क्या कहना चाहते हैं. पोएट ये कहना चाहते हैं कि स्टॉक्स का मतलब गुस्से में इधर उधर चलना, विविड स्ट्राइप्स का मतलब शेर के शरीर में जो रंग है, येलो कलर है, ब्लैक कलर है, जो स्ट्राइप है उसके बॉडी में. द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पेड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, वो इधर उधर चल रहे हैं. ऑन पेड ऑफ वेलवेट क्वाइट, उनके जो पंजा है वो वेलवेट जैसा है.
जो कि कोई आवाज़ नहीं है उसके पंजे में, उसके चलने से कोई आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है। इन हिज क्वाइट रेज, बिल्कुल चुपचाप। जब वो गुस्सा है तो वो भी बिल्कुल क्वाइट, धीरे से गुस्सा है, शांति से गुस्सा है। अब एक्सप्लेनेशन आप देखें जो हमने बनाया। हियर द पोएट डिस्क्राइब द टाइगर इन द जू। लेखक जू में जो टाइगर है उनके बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं। ही सेज दैट द टाइगर मूव्स अप एंड डाउन इन हिज केज। आगे पीछे वो घूम रहे हैं वहाँ पे। द स्ट्राइप्स ऑन हिज बॉडी कैन बी डिस्टिंग्विश्ड इवन फ्रॉम फार एज दे आर डार्कर इन कलर देन द रेस्ट ऑफ हिज बॉडी। जो स्ट्राइप्स हैं बहुत चमकीला है, बाकी बॉडी से भी, बॉडी के रंग से उभर कर दिख रहा है। द टाइगर इज एबल टू वॉक only few steps because the cage is small and it is very difficult to move in it। बहुत छोटा सा है पिंजरा जिसमें शेर को, टाइगर को चलते नहीं बन रहा है और बहुत गुस्से में वो इधर उधर टहल रहे हैं। One cannot hear his footsteps on paid of velvet quiet in his quiet race। उनकी जो चलने की आवाज़ है, फूड स्टेप्स जो हैं, पदचाप है, वो सुनाई नहीं दे रहा है। बिकॉज ही हैज़ वेरी सॉफ्ट फीट। उसके जो फीट है, उसके जो फीट है वो बहुत सॉफ्ट है, बहुत नरम है। लाइक वेलवेट विच मेक्स नो साउंड, जो एक मखमल की तरह है, जो जिससे कोई आवाज़ नहीं निकल रही है। द टाइगर ट्राइज टू कंट्रोल हिज एंगर बाय वॉकिंग क्वाइटली इन द केज। शांति से चलते हुए वो अपने गुस्सा को काबू करने की कोशिश करते हैं। तो लेखक यहाँ पे, पॉइंट यहाँ पे ये हमें बताना चाहते हैं कि द टाइगर इज एंग्री बट ही इज हेल्पलेस। ही इज हेल्पलेस। अब इस में जो लिटरेरी डिवाइसेस हम जो यूज़ करते हैं, राइम स्कीम जो है वो ABCB है, जिसमें केज और रेज। आप केज देखें बी में और रेज, ये दो हमारे राइमिंग हो रहे हैं, इसलिए ABCB, ABCD, ठीक, ABCB के हिसाब से यहाँ पे हुआ है। टाइगर को पर्सनिफिकेशन किया गया है पूरे पोएम में, ये चीज़ है जिसमें पोएट ने उसे ही का संबोधन किया। यानी जब हम किसी निर्जीव को या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को जो बातचीत नहीं कर सकता, जो ह्यूमन बीइंग जैसा नहीं हो सकते और उनका व्यवहार वैसा हो तो हम उसे पर्सनिफिकेशन कहते हैं। यहाँ पे मेटाफॉर है। मेटाफॉर माने किसी चीज़ को दूसरे के साथ तुलना कर देना। टाइगर के पॉज जो है वो कंपेयर किए गए हैं वेलवेट के साथ, तो पेड्स ऑफ वेलवेट, ये मेटाफॉर होगा। एजोनेंस यूज हुआ है जहाँ पे वॉवेल का यूज होता है, यूज ऑफ वॉवेल। आई का यूज हुआ, देखिए लाइन में, इन हिज विविड स्ट्राइप्स, यहाँ पे आई का यूज एक से कई बार हुआ है। ऑक्सीमोरन, द यूज ऑफ फॉर ऑपोजिट इन मीनिंग, मतलब गुस्सा जो है वो शांत है, ऑक्सीमोरन है। क्वाइट रेज, गुस्सा कभी शांति से कैसे होगा, बट लेखक ने यहाँ पे यूज किया तो हम उसे ऑक्सीमोरन कहेंगे। ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये है फिगर ऑफ स्पीच, जिसे हम अलंकार कहते हैं हिंदी में। सेकेंड नंबर स्टेंजा में हम बात करें, ही शुड बी लर्किंग इन शेडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। डिफिकल्ट वर्ड्स हैं। लर्किंग, लर्क का मतलब प्रॉलिंग करना, वेट सीक्रेटली, अपने शिकार के लिए बहुत चालाकी से छिप के बैठना। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, धीरे धीरे खिसकना। लॉन्ग ग्रास, लंबे घास के पीछे खड़ा हुआ है, लंबे घास के पीछे सरकते हुए चल रहा है शेर, टाइगर, ताकि हिरण को ये ना पता चले कि कोई उसका पीछा कर रहा है या कोई उसे नज़र रखा हुआ है। नियर द वाटर होल, यहाँ पे वाटर होल का मतलब होता है वाटर बॉडीज, जंगल में जहाँ पे पानी इकट्ठे होते हैं, झील है, झरना है या फिर जो भी है पोन्स हैं, उसे हम वाटर होल कह रहे हैं। वेयर प्लम्प डियर पास, प्लम्प का मतलब होता है फ्लैशी, फैट, मोटा, तगड़ा, एक डियर वहाँ से गुजर रहा है। ये इसका सिचुएशन है। तो लेखक ये कहते हैं कि द पोएट सेज दैट इफ द टाइगर वॉज फ्री, अगर वो फ्री होता, he would be waiting secretly behind the long grass near the water bodies to catch his prey। अगर वो जंगल में होता तो किसी घास के पीछे छिप कर हिरण की प्रतीक्षा कर रहा होता। A fleshy deer easily body to catch his prey, a fleshy deer easily, बहुत आसानी से एक fleshy deer को आसानी से वो पकड़ सकता था। Basically the poet wants to say
that the actual life of tiger is to live in jungle where he could catch his prey and eat, but the tiger in the cage cannot do so. एक पिंजरा में जो बंद है टाइगर, वो ये सब नहीं कर सकता। तो ये हमें लेके गए जंगल, जैसे शुरुआत में लेखक ने कहा था कि हम जंगल से जू से जंगल, जंगल से जू की तरफ हम मुड़े, तो ये जंगल की एक डिस्क्रिप्शन कर रहा है सेकेंड नंबर स्टैंजा। यहाँ पे जो सेम है ABCB, पूरे पोएम में ABCB के हिसाब से राइमिंग स्कीम बना हुआ है। यहाँ पे शेडो, ग्रास एंड पास, B AB और ये CB, दो तरीके से हुआ। एलिट्रेशन का यूज हुआ है, जहाँ पे यूज ऑफ साउंड P एट द स्टार्ट ऑफ द टू वर्ड्स, प्लम्प एंड पास, यानी कॉन्सोनेंट साउंड का बार बार उल्लेख हुआ है यहाँ पे, जिसे हम एलिट्रेशन कहेंगे। थर्ड नंबर स्टेंजा में राइटर कहते हैं कि ही शुड बी नार्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज, बेरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज। ये फिर से हमें जंगल की तरफ लेके गए, और जंगल में यदि वो खुला होता, नार्लिंग, रोरिंग आवाज, द साउंड ऑफ टाइगर एट द जंगल्स एज, किसी जंगल के किनारे जहाँ पे कोई गांव है, वहाँ पे आके एक टाइगर आवाज कर रहा होता, गुर्रा रहा होता, बेरिंग हिज वाइट फैंग्स, बेरिंग का मतलब होगा अनकवर्ड फैंग्स, फैंग्स का मतलब शार्प टूथ ऑफ एनिमल्स, शेर का जो टूथ है उसे हम फैंग्स कह रहे हैं। तो एक खुला हुआ दांत दिखाते हुए, अपने पंजों को खोले हुए गांव में दहशत फैला रहा होता ये टाइगर, यदि ये जंगल में होता। द पोएट सेज द टाइगर वुड बी रोरिंग एट द एज ऑफ द जंगल नियर सम विलेज, ही वुड बी शोइंग हिज वाइट फैंग्स एंड क्लॉज while moving here and there and scaring all the villagers, लोगों में दहशत फैला रहा होता, लोगों को डरा रहा होता। This would create fear among the people, जिससे लोग भयभीत होते। Living in the village, the poet warns, लेखक हमें ये वार्न करना चाहते हैं यहाँ पे, If we destroy forest, ये हो सकता है यदि हम जंगल को नुकसान पहुँचाते हैं, Tigers will be forced to move to our towns and villages to find their food, मजबूर हो जाएंगे कि गांव शहर की तरफ आएंगे और हमें अपना शिकार बना लेंगे। तो यहाँ पे एक तरीके से अगर देखा जाए तो इस स्टैंजा में लेखक की एक पीड़ा यहाँ पे दिख रही है, द एगोनी ऑफ राइटर विद द एगोनी ऑफ टाइगर, यानी शेर के लिए, टाइगर के लिए उनके मन में एक दया की भाव आई कि हमने एक असहाय एनिमल को, एक हेल्पलेस एनिमल को हमने अपने मज़े के लिए हमने जू में रख दिए, ये ठीक बात नहीं है। दिस इज़ नॉट गुड थिंग। लैरिकल लिटरली डिवाइसेस यहाँ पे फिर से है वही, ABCB है, एज और विलेज। यहाँ पे अगर देखें एज और विलेज है, यहाँ पे एज और विलेज, ये हमारा लैरिकल डिवाइसेस। इसमें एक नया फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ हुआ, ओनोमोटोपिया। ओनोमोटोपिया यूज होगा कि जब साउंड का यूज होता है, ऐसे शब्दों का प्रयोग होना जो साउंड, यानी जो साउंड को डिस्क्राइब करते हैं, जैसे नार्लिंग, नार्लिंग का मतलब रोरिंग, रोरिंग इज ए साउंड, तो उसे ओनोमोटोपिया कहते हैं। एजोनेंस का भी यूज हुआ, जहाँ पे वॉवेल O और L बार बार यूज हुए हैं, सूड, अराउंड हाउसेस, फिर बेरिंग, हीज, वाइट एंड हीज, तो ये हमारा एजोनेंस हुआ लिटरेरी। नेक्स्ट स्टेंजा में द पोएट क्या कहते हैं, बट ही इज़ लॉक्ड इन द कॉन्क्रीट सेल। हम जेल में आ जाएं, अब हम उसके जेल में आ गए, सेल में आ गए, जू में आ गए। बट ही इज़ लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल, लेकिन ये तो एक कॉन्क्रीट सेल में, सीमेंट, ईंट, रेत, मिट्टी से बना हुआ एक घर में बना हुआ पिंजरे में बंद है ये शेर। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स। अब यहाँ पर देखिए लेखक क्या कर रहे हैं, पोएट क्या कर रहे हैं ये अब लेखक उन अपने रियलिटी में आ गए, जो जहाँ पे शेर जो है, वो टाइगर जो है वो एक्चुअल में बंद है। टाइगर इज केज्ड इन ए स्मॉल कंक्रीट सेल इन द जू। ही फर्दर सेज दैट एज ए टाइगर इज बिहाइंड द बार, सो ही इज नॉट एबल टू शो हिज फेरोसियसनेस। वो बंद है इसलिए अपनी गुस्सा, अपनी स्ट्रेंथ नहीं दिखा पा रहे हैं।
ही जस्ट टॉक्स इन द केज, सिर्फ केज में इधर उधर चल रहे हैं। द टाइगर पेज नो अटेंशन टू द विजिटर्स, और विजिटर्स को भी वो कोई अटेंशन, कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। हु कम्स टू सी हिम एवरी डे, जो बोलते रोज आते हो तुम, रोज मुझे देखते हो यार, क्या मजा मिलता है, एक बार पिंजरे से खोलो तो मैं बताऊं कि मैं कौन हूं। सो दिस इज द फीलिंग ऑफ टाइगर दैट इज इनसाइड द केज। यहाँ पे भी फिर से पोएटिकल राइम की तरफ अगर हम चलें तो सेम है यहाँ पे भी, बार्स एंड विजिटर्स। नेक्स्ट है ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, ये हमारा लास्ट स्टैंजा है पोएम का। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, ये यहाँ पे लेखक ने जो एक पीड़ा टाइगर के बारे में उन्होंने जो बात की, द एगोनी ऑफ टाइगर यहाँ पे बिल्कुल खुल के सामने दिख रही है। देखिए, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स। टाइगर क्या सुनता है, लास्ट वॉइस एट नाइट। लास्ट वॉइस किसका आता होगा उस रात को? जो गार्ड है जब वो ताला मारता होगा जू को, उसकी आवाज़, तालों की आवाज़, खनखनाहट की आवाज़, उसके जाने की आवाज़, ये लास्ट वॉइस है। द पेट्रोलिंग कार्स, वहाँ पे पुलिस की जो गाड़ियाँ घूम रही है रात में, वो पेट्रोलिंग कार की आवाज़ जो सुनते हैं। मतलब रात भर, दिन में तो विजिटर्स की प्रॉब्लम, विजिटर्स आ रहे हैं इसलिए उनको चैन नहीं है टाइगर को, उनको शांति नहीं मिल रही है, उसको रेस्ट नहीं कर पा रहे हैं वो। एंड रात में ये पेट्रोलिंग कार की आवाज़ के कारण वो नहीं सो पा रहे हैं। एंड स्टीयर्स, इसलिए मजबूरन वो क्या करते हैं, एंड स्टीयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज, चमकदार आंखों से, एट द ब्रिलियंट स्टार्स, रात में चमकते हुए तारों की तरफ वो निहारते रहते हैं और अपना रात गुजार देते हैं। यानी देयर इज नो रेस्ट इन द लाइफ ऑफ टाइगर दैट इज केज्ड इन द जू। ये यहाँ पे द पोएट डिस्क्राइब्स द डेली रूटीन ऑफ द टाइगर, उसके रोज के रूटीन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। द टाइगर कांट रेस्ट ड्यूरिंग द डे बिकॉज ऑफ द विजिटर्स, एंड एट नाइट द नॉइज ऑफ द पेट्रोलिंग कार्स डिस्टर्ब्स हिम। It stays awake till the very last voice of the zookeeper looking up and going home can be heard. After that too, it does not go to sleep. It keeps staring at the brilliant stars with brilliant eyes. Alliteration का यूज हुआ, यूज ऑफ साउंड H साउंड का यूज हुआ he and hears. Assonance का यूज हुआ, assonance again the sound of vowel is called assonance. With his and brilliant, in this line I का यूज हुआ है। अब इस पोइम का जो मुख्य थीम है, थीम क्या है? द पोइट इज अ ब्यूटीफुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिफिकल्टी ऑफ एनिमल्स। ये जो कविता है, ये जो पोएम है, ये एक एनिमल के डिफिकल्टी को रिप्रेजेंट करता है। इट इज अ शेम टू केज एनी एनिमल इन द जू। किसी भी एनिमल को पिंजरे में रखना एक शेमफुल है, एक शर्म की बात है। द एनिमल्स बिकम हेल्पलेस एंड लीव सैडली। जो एनिमल है वो दुखी हो जाते हैं, हेल्पलेस हो जाते हैं और रहते हैं। हिज प्रेजेंस इन द नेचुरल हैबिटेट इज नेसेसरी टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ फूड चेन। फूड चेन को बैलेंस करने के लिए उसको आज़ाद छोड़ना, आज़ाद रहना बहुत जरूरी है। इन द केज इट शोज हिज कॉन्फाइनमेंट। अपनी जो बंदी है, बंदीपन है, वो उसे वो दिखाता है। टाइगर मजबूर है। ही इग्नोर्स ऑल दोज हु कम टू द जू टू सी हिम, और वो लोगों को इग्नोर कर जाते हैं। He shows his anger by walking in his cage. The freedom of anyone, whether animal or human beings, should not be taken by any means. किसी भी तरीके से किसी की आज़ादी को छीनने नहीं चाहिए। ये बेस्ड है इस पोइम का थीम। अब हम आगे देखें कि समरी ऑफ द पोइम, इस पोइम की समरी क्या कहता है। द पोइम बिगिंस विथ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द टाइगर दैट इज वेरी ब्यूटीफुल एंड इज वॉकिंग इन हिज लिटिल केज। एक शेर पिंजरे में चल रहा है जो बहुत सुंदर है। ही सेज दैट द टाइगर मूव्स अप एंड डाउन इन हिज केज। इधर उधर वो टहलते हैं। द टाइगर इज एबल टू वॉक ओनली फ्यू स्टेप्स, बहुत ही कुछ स्टेप वो चल पाते हैं। बिकॉज द केज इज स्मॉल एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मूव इन इट। उसके अंदर घूमना बहुत डिफिकल्ट है। वन कैनॉट हियर हिज फुट स्टेप्स, उसकी फुट स्टेप सुनाई नहीं देती। बिकॉज ही हैज़ वेरी सॉफ्ट फीट लाइक वेलवेट विच मेक्स नो साउंड। द टाइगर ट्राइज टू कंट्रोल हिज एंगर by walking quietly in the cage. केज में चलता हुआ वो अपने गुस्से को काबू करने की कोशिश करता है। The poet thinks of the tigers roaring and frightening the villagers.
लेखक सोचते हैं यदि ये खुले में रहता, जंगल में रहता तो लोगों को डराता, लेकिन द टाइगर इज हेल्पलेस इन द जू एंड कैन नॉट रेस्ट बिकॉज ऑफ साउंड एंड नॉइस। यहाँ पे वो हेल्पलेस है और ये साउंड जितने हैं इनके कारण वो रात में रेस्ट नहीं कर पाते, दिन में विजिटर्स के कारण रेस्ट नहीं कर पाते। ही पेज नो अटेंशन टू द विजिटर्स हु कम टू वॉच हिम, ही कीप्स स्टेयरिंग एट द ब्रिलियंट स्टार्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज, और वो अपने ब्रिलियंट स्टार को अपने आंखों से निहारते रहते हैं। तो दिस इज द पोएम वी डिस्क्राइब्ड, एंड यह पोएम बहुत ही सुंदर पोएम है जिसमें हमें एक मैसेज मिलता है कि हमें किसी भी एनिमल को कैप्चर करके नहीं रखना चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट द पोएम। अब हम चलते हैं अपने इस पोएम के बारे में आपने क्या समझा, सुझाव जरूर दीजिए। अगर आपने पहली बार ये हमारा चैनल देख रहे हैं या ये वीडियोस देख रहे हैं तो इसमें वीडियोस में देखें, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ग्रामर हैं, स्पोकन हैं, आपके बहुत इम्प्रूव आपके काम के लायक चीज़ें इसमें हैं। तो यू मस्ट वॉच दिस। प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।